Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Mariam Tahir, internationally registered physiotherapist, director, CEO, and founder of PMC Professionals Hub, an extension of PMC Physio Medical Clinic. Now, I warmly welcome you all to today's academic session. Before we begin, I would like to clearly inform you that this is an academic activity under PMC standards and ethical guidelines. Please listen attentively and note down the required codes in the correct sequence, as they will be essential for certification. The certification submission form will be activated immediately after the recording ends. Only those who respond within 1 hour will be considered eligible. Kindly maintain professionalism in the live chat and focus on learning. Now, without further delay, let's begin our session today. Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Mavish Nasir, physiotherapist, worked as a house officer of DPT at Civil Hospital PMCH Nawab Shah. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Today my discussion topic is cervical radiculopathy or pinched nerve in the neck. In this meeting, I will tell you the assessment, differential diagnosis, and physiotherapy management of cervical radiculopathy. Before starting my session, I would like to say thanks to Dr. Mariam that she gave me a chance to conduct this webinar as a guest speaker. So let's start our topic. What is cervical radiculopathy? Cervical radiculopathy occurs when a nerve in the neck is compressed or irritated. This can result in pain in shoulder, muscle weakness, or numbness that travel down the arm into the hand, or simply it's the compression of nerve root at cervical spine. Cervical radiculopathy हमारी नेक में नर्व की कंप्रेशन है सिंपली या उसकी इरिटेशन है जिसकी वजह से शोल्डर में पेन होता है और नमनेस एंड वीकनेस होती है शोल्डर में जो ट्रैवल करती है अपर आर्म लोअर आर्म एंड देन इनटू द हैंड हियर यू कैन सी द diagrammatical representation of cervical radiculopathy. In this picture there is a cervical spine. Here you can see the compression of cervical nerve, and then there is a pain in the shoulder, muscle weakness or numbness that travels down the whole arm and then into the head. Plus, there is loss of sensation at the hand or tingling sensation in the hand. Now, what prevalence or incidence of cervical radiculopathy? The incidence of cervical radiculopathy has been established to be between 63.5 and 107.3 per 1 lakh people per year, with the C6 and C7 segments being the most affected. ये एक सिस्टमेटिक रिव्यू कंडक्ट हुआ था ऑन द टॉपिक मैनुअल थेरेपी एज द मैनेजमेंट ऑफ सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी इन 2021। इस सिस्टमेटिक रिव्यू के ज़रिए हमें पता चला कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की इंसिडेंस पर ईयर 1 लाख पीपल में से 64 टू 107 पीपल अफेक्ट होते हैं और उसमें भी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का मोस्ट कॉमन जो सेगमेंट अफेक्ट होता है वो C6 एंड C7 वर्टिब्री के बिटवीन सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी मोस्ट कॉमनली होती है. नाउ what are the symptoms of cervical radiculopathy? As I have already told you the symptoms of cervical radiculopathy, here you can see the pain radiates into the shoulder, plus there is muscle weakness and numbness in the arms and hand, and loss of sensation, tingling sensation in the hand and finger, and the nature of the pain is sharp or burning.
Now, what are the causes of cervical radiculopathy? Disc herniation. Number two, decreased disc height due to degenerative disc disease. Number three, spondylosis, spondylolisthesis, cervical instability, trauma, and heavy weightlifting. Now, what is spondylosis? Spondylosis. Spondylosis, here in this picture, you can see the healthy cervical spine versus spondylotic cervical spine. ये देखें, इसमें डिस्क की बल्जिंग हो रही है, बोन पर फॉर्मेशन भी बन रहे हैं, और डिस्क की जो स्पेस है वो नैरो हो रही है, जिसकी वजह से हमारी नर्व कंप्रेस हो रही है और पेन हो रहा है। स्पॉन्डाइलोसिस को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ स्पाइन भी कहते हैं। व्हाट इज स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस? स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस is a condition in which one cervical vertebrae slide forward over the other. एक cervical vertebrae दूसरी cervical vertebrae से थोड़ा सा forward slip हो जाती है। पिक्चर में आप देख सकते हैं एक vertebrae sliding forward हो रही है on the other vertebrae. Now how can we assess the cervical radiculopathy? First one is the Sperling test, which is also known as foraminal compression test or neck compression test. In order to perform this test, the patient have to be in a sitting position, and the position of the neck is extension and rotation. Then the therapist apply the downward pressure on the head. अब अगर इस टेस्ट को परफॉर्म करने में पेशेंट का पेन रिप्रोड्यूस हो रहा है, इट मीन्स ये टेस्ट पॉजिटिव है और पेशेंट को सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है। सेकंड टेस्ट होता है नेक डिस्ट्रैक्शन टेस्ट, जिसे हम नॉर्मली ट्रैक्शन ऑफ नेक भी कहते हैं। इस टेस्ट में थेरेपिस्ट जो है वो सर्वाइकल ट्रैक्शन देता है पेशेंट को, और अगर ट्रैक्शन देने से पेशेंट के सिम्टम्स रिलीव होते हैं, इट मीन्स पेशेंट को सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है। आप सर्वाइकल ट्रैक्शन से पेशेंट के सिम्टम्स क्यों रिलीव हो रहे हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो जब हम ट्रैक्शन देते हैं तो हमारी वर्टिब्रीज के बिटवीन एक स्पेस क्रिएट होती है। अब जो स्पेस नैरो हो रही थी और नर्व को पिंच कर रही थी, उससे स्पेस बढ़ रही है, और नर्व पे जो पिंचिंग हो रही थी, कंप्रेशन हो रही थी, वो कम होगी, जिसकी वजह से पेशेंट का पेन कुछ सेकंड्स के लिए रिलीव होगा। तो ये भी हमें बताएगा कि पेशेंट को सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है। स्पार्लिंग टेस्ट में हम पेशेंट को कंप्रेशन दे रहे थे नेक पे विद एक्सटेंडेड एंड रोटेटेड नेक। इसमें हम ट्रैक्शन देंगे। थर्ड वन इज एंटीरियर डोरबेल साइन। In this test, the therapist deeply palpate the fifth cervical vertebrae, and if there is the reproduction of pain, then this test is considered to be positive. ये वेरिफिकेशन कोड है, काइंडली आप इस कोड को नोट डाउन कर लें अपने पास। Now, fourth assessment test is upper limb tension test or the neurodynamic tension test. अपर लिम टेंशन टेस्ट इसलिए होता है कि हमें पता चले कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में कौन सी नर्व कंप्रेस हुई है। अल्नर नर्व कंप्रेस हुई है, मीडियन नर्व कंप्रेस हुई है, या रेडियल नर्व कंप्रेस हुई है। तो वन बाय वन हम न्यूरोडायनेमिक टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द अल्नर नर्व टेस्ट। इसमें पेशेंट शुड बी इन सुपाइन पोजिशन, and therapist bring the shoulder in abduction, forearm in pronation, elbow in flexion, wrist and fingers in extension. If patient feel pain in the little and medial half of the ring finger,
then it confirms the compression of ulnar nerve in cervical radiculopathy. अगर पेशेंट का इस मूवमेंट में पेन रिप्रोड्यूस हो रहा है लिटिल फिंगर में और मीडियल हाफ ऑफ द रिंग फिंगर में, तो हमें पता चलेगा कि सर्वाइकल रेडिकुलरपैथी में अल्नर नर्व ही कंप्रेस हुई है. Second upper neurodynamic tension test is for median nerve. In this test, the patient should be in supine position and therapists bring the shoulder in abduction, elbow in extension, forearm in supination, wrist and fingers in extension. And if the patient feel pain in the thumb and index finger plus middle and radial half of the ring finger, then it confirm the compression of median nerve इन सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी. अगर पेशेंट को पेन फील हो रहा है थंब में, इंडेक्स फिंगर में, मिडिल फिंगर में और रिंग फिंगर के रेडियल हाफ में, तो ये शो करेगा कि पेशेंट को मीडियन नर्व की कंप्रेशन है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के अंदर. Last neurodynamic tension test is for radial nerve, and in order to perform this test, your patient should be in supine position and therapists bring the shoulder in slight abduction, elbow in extension, wrist and finger in flexion and forearm in pronation. और अगर पेशेंट को इन सारी मूवमेंट करवाने से पेशेंट को फील हो रहा है पेन ऑन द डॉर्सम और द बैक ऑफ द हैंड, then it confirms the compression of radial nerve in cervical radiculopathy. Now ये तो हमने असेसमेंट कर ली बिफोर द इमेजिंग. अब इमेजिंग से पहले हमने असेसमेंट कर ली, अब हमारी असेसमेंट को फर्दर कंफर्म होगी इमेजिंग के थ्रू. वो इमेजिंग्स में हमारे पास होता है एक्सरे. एक्सरे में हमें वर्टिब्रल कैनाल की नैरोइंग दिखती है. सेकंड इमेजिंग है एमआरआई. इसमें हमारी नर्व कितनी डैमेज हुई है, क्योंकि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में हमारी नर्व कंप्रेस हो रही है जिसकी वजह से हमें पेन फील हो रहा है. तो एमआरआई में हमें पता चलेगा नर्व कितनी एक्सटेंट तक डैमेज हुई है. नाउ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी. इसमें हमारे पास आते हैं सर्वाइकल माइलोपैथी, कार्पल टनल सिंड्रोम, क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम एंड फ्रोजन शोल्डर. सर्वाइकल माइलोपैथी कंप्रेशन है स्पाइनल कॉर्ड इन द नेक, जबकि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कंप्रेशन है नर्व इन द सर्वाइकल स्पाइन, नर्व की कंप्रेशन है. रेडिकुलोपैथी माइलोपैथी कंप्रेशन है स्पाइनल कॉर्ड की. प्लस हमें सिम्टमेटिक भी डायग्नोसिस में हेल्प, जब हम सिम्टम्स देखेंगे तो वो भी हमें हेल्प करेगा कि पेशेंट को सर्वाइकल माइलोपैथी है या रेडिकुलोपैथी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, पेशेंट अगर माइलोपैथी का है तो उसे नेक पेन ज़्यादातर नहीं होगा या बिल्कुल भी नेक पेन नहीं होगा, लेकिन अगर रेडिकुलोपैथी का है तो उसे तो सिग्निफिकेंट नेक पेन होगा, प्लस वो पूरे आर्म में उसका पेन आ रहा होगा. सेकेंड डिफरेंशिएटिंग point is that in the cervical myelopathy there is bilateral pain, but in the cervical radiculopathy there is unilateral pain mostly. And in the cervical myelopathy the patient is unable to perform the fine motor skills such as buttoning, such as writing. And the second one is carpal tunnel syndrome. In the carpal tunnel syndrome, there is the compression of median nerve, while in the cubital tunnel syndrome, there is the compression of ulnar nerve. Last one is frozen shoulder. Frozen shoulder is also known as adhesive capsulitis. It is a condition in which there is a tightening and thickening of the capsule that results in pain and stiffness in the shoulder, and which in turn causes the limitation of shoulder movement. तो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होगा तो उसमें शोल्डर पेन होगा, शोल्डर की मूवमेंट लिमिटेड नहीं होगी, लेकिन अगर फ्रोजन शोल्डर होगा तो उसमें शोल्डर की मूवमेंट सिग्निफिकेंटली लिमिटेड होंगी. Now treatment of the cervical radiculopathy. Treatment option for cervical radiculopathy include following. Number one, soft collar, cervical collar. Second, physiotherapy. Third, medication, which include oral NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, methylcobalamin, glucocorticoid injections, and last approach is surgery. So today, the focus of our webinar is physiotherapy management of cervical radiculopathy. So let's discuss it in detail.
आप फिजियोथेरेपी में सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी को दो अप्रोचेस को यूज़ करके ट्रीट किया जाता है। फर्स्ट वन होती है पेन मैनेजमेंट बाय यूजिंग मोडेलिटीज़, सेकंड वन होती है मैनुअल थेरेपी। पेन मैनेजमेंट मोडेलिटीज़ में हम कौन कौन सी मोडेलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं पेशेंट के पेन को कम करने के लिए। फर्स्ट वन टेंस है जो कि पेशेंट के पेन को रिड्यूस करेगा गेट कंट्रोल थ्योरी के थ्रू। सेकंड है हीटिंग पैड, ये हम वार्म अप के लिए देते हैं ताकि मसल में फटीग ना हो। और थर्ड होता है मसाजर, जिसके थ्रू हम नेक स्पाज़म को रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि टेंस कैसे हमारे पेन को रिड्यूस करता है, कैसे नॉर्मल पाथवे होता है पेन का, ताकि क्योंकि टेंस एक बहुत ज़्यादा कॉमनली मॉडलिटीज़ है जिसे हम कॉमनली यूज़ करते हैं टेंस को। तो टेंस इज़ अ लो फ्रीक्वेंसी करंट एंड इट रिड्यूसेस द पेशेंट पेन बाय गेट कंट्रोल थ्योरी। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पेशेंट टेंस जो है वो गेट कंट्रोल थ्योरी पे वर्कआउट करता है और ये लो फ्रीक्वेंसी करंट है, पेशेंट के पेन को रिड्यूस करता है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द पेन गेट कंट्रोल थ्योरी यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द पेन गोज़ टू द ब्रेन। आपको पता होना चाहिए कि पेन का नॉर्मल पाथवे कैसे है और पेन है क्या। पेन इज़ अ अनप्लेजेंट सेंसेशन दैट अकर्स ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ नोसिसेप्टर्स। Nociceptors are the sensory receptor that carries the pain to the brain and spinal cord. अब पेन एक अनप्लेजेंट सेंसेशन है जो हमारी स्किन में नोसिसेप्टर्स की एक्टिवेशन की वजह से हमें फील होता है। और नोसिसेप्टर्स पेनफुल स्टिमुलस को या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं। एनी फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल स्टिमुलस such as heat, cold activities, the nociceptors, which in turn causes the activation of neuropeptide, due to which the stimulus move towards the brain and spinal cord through the afferent fiber. अब फॉर एग्जांपल आपको कोई हॉट स्टिमुलस हुआ है तो वो आपकी स्किन में नोसिसेप्टर्स जो प्रेजेंट हैं, जो कि रिसेप्टर्स हैं, वो फील करेंगे, उसे रिसीव करेंगे। वो उसके बाद तो पेनफुल स्टिमुलस अगर आपके पास आएगा तो पहले नोसिसेप्टर्स उसे रिसीव करेंगे और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएंगे थ्रू द एफरेंट फाइबर्स। अब हमारे पास दो तरह के एफरेंट फाइबर्स होते हैं जो पेन को रिसेप्टर्स से लेके ब्रेन तक लेके जाते हैं। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर एफरेंट फाइबर। ये वो फाइबर होते हैं जो पेनफुल स्टिमुलस को नोसिसेप्टर से डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं। और ये फर्दर कैटेगराइज होते हैं दो फाइबर में, ए डेल्टा एंड सी फाइबर। ए डेल्टा फास्ट पेन को कैरी करेगा जबकि सी फाइबर स्लो पेन को कैरी करेगा। अब फर्स्ट ऑर्डर एफरेंट फाइबर का काम क्या है, नोसिसेप्टर से पेनफुल स्टिमुलस को रिसीव कर को लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक जाना, डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तक। सेकंड ऑर्डर एफरेंट फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक लेके जाते हैं पेन को। तो सेकंड ऑर्डर एफरेंट फाइबर्स किसके थ्रू जाते हैं ब्रेन तक स्पाइनल कॉर्ड से, थ्रू द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एंड द स्पाइनोमेसेंसेफेलिक ट्रैक्ट एंड स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक्ट। देन उसके बाद एक हमारे टर्शरी फाइबर होते हैं जिसे हम थर्ड ऑर्डर एफरेंट फाइबर्स भी कहते हैं। बस मोस्टली जो है बुक्स में फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर एफरेंट फाइबर्स होते हैं। तो टर्शरी वो होते हैं जो थैलेमस से सेरिब्रम तक हमारी इंफॉर्मेशन को, पेनफुल स्टिमुलस को लेके जाते हैं। द फर्स्ट ऑर्डर एफरेंट फाइबर्स synapses with the second order afferent fiber and make T cells. This synapses occur at the substantia gelatinosa nucleus in the dorsal horn of spinal cord. The substantia gelatinosa nucleus has inhibitory effect on the T cells, which are responsible for the transmission of painful stimulus into the brain. The periaqueductal gray matter in the brain, in the midbrain, and Raphe nucleus in the medulla also has an inhibitory effect on the T cell. In the pain, the activation of SG nucleus, PAG, and RN is inhibited by limbic system. अब यहाँ पे हमारा मेन पर्पज़ है कि टेंस कैसे पेन को रिड्यूस करता है। पहले हमने नॉर्मली पढ़ा पेन का पाथवे, अब टेंस कैसे वर्कआउट करता है।
मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट ऑर्डर एफरेंट फाइबर वो होते हैं जो नोसिसेप्टर्स से पेनफुल स्टिमुलस को स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं। देन डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा न्यूक्लियस में ये फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर एफरेंट फाइबर एक दूसरे के साथ साइनेप्स करते हैं और टी सेल्स बनाते हैं। देन टी सेल्स इन द आगे ब्रेन तक जाता है। तो जो एसजी सेल्स हैं सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा न्यूक्लियस है वो टी सेल्स पे इनहिबिटरी इफेक्ट डालते हैं अगर ये स्टिमुलेट हो जाएं। तो नॉर्मली पेन में एसजी सेल्स जो हैं वो स्टिमुलेट नहीं होते, जिसकी वजह से टी सेल्स आगे ब्रेन तक जाते हैं। तो टेंस क्या करता है, इन एसजी सेल्स को एक्टिवेट करवाता है, जिसकी वजह से वो टी सेल्स पे इनहिबिटरी इफेक्ट डालता है और यहाँ पे हमारा इस पॉइंट को, इस एसजी न्यूक्लियस को हम गेट कंट्रोल कहते हैं, गेट कहते हैं। ये गेट को बंद करवाता है, जिसकी वजह से टी सेल्स की ट्रांसमिशन नहीं होती और पेन ब्रेन तक नहीं जाता। अब ये कैसे एसजी सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, ये पेरी एक्वेडक्टल ग्रे मैटर और रेफी न्यूक्लियस जो कि मिड ब्रेन और मेड्यूला ऑब्लंगेटा में होते हैं, उन्हें एक्टिवेट करवाएगा, जिसकी वजह से एसजी सेल्स एक्टिवेट होगा। और अगर एसजी सेल्स एक्टिवेट होगा तो सी टी सेल्स क्या हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे और पेन ब्रेन तक नहीं जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर टेंस जो है वो एसजी सेल्स को स्टिमुलेट करवा रहा है, तो ड्यूरिंग पेन एसजी सेल्स इनहिबिट क्यों होते हैं? तो वो इनहिबिट इसलिए होते हैं क्योंकि पीएजी और रेफी न्यूक्लियस, पेरी एक्वेडक्टल ग्रे मैटर और रेफी न्यूक्लियस इनहिबिट हुए हुए होते हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। मैं अभी आपको डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगी तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें, पेनफुल स्टिमुलस आया, प्राइमरी न्यूरॉन या फर्स्ट ऑर्डर एफरेंट फाइबर के थ्रू ये स्पाइनल कॉर्ड में गया और स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न और डॉर्सल हॉर्न के सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा न्यूक्लियस में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर एफरेंट फाइबर के साथ साइनेप्स करेगा और टी सेल्स बनाएगा। टी सेल्स के थ्रू ये ऊपर ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन में भी थैलेमस तक जाएगा, सेकेंडरी न्यूरॉन या सेकंड ऑर्डर एफरेंट फाइबर्स के थ्रू। उसके बाद थैलेमस से सेरिब्रम तक टर्शरी न्यूरॉन के थ्रू जाएगा। गेट कंट्रोल थ्योरी, टेंस रिड्यूसेस द पेन बाय स्टिमुलेटिंग द एसजी न्यूक्लियस, जो कि इनहिबिट होता है जब पेन फील हो रहा होता है। तो periaqueductal gray matter and Raphe nucleus. These nucleus in turn causes the presynaptic inhibition by inhibiting the T cells, and if the T cells are inhibited then the pain is reduced. टेंस कहाँ पे वर्क कर रहा है, एस जी सेल्स को स्टिमुलेट करवा रहा है। कैसे स्टिमुलेट करवा रहा है, पेरी एक्वेडक्टल ग्रे मैटर और रेफी न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करवा के। और नॉर्मली जब पेन फील हो रहा होता है तो ये दोनों न्यूक्लियस इनहिबिट हुए हुए होते हैं, एक्टिवेट नहीं हुए हुए होते हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। नाउ सेकंड अप्रोच, एक्सरसाइजेस फॉर सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी मैनुअल थेरेपी। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी सर्वाइकल ट्रैक्शन। होल्ड द ट्रैक्शन फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड रिपीट इट 3 times while continually distract the neck with the help of cervical collar. Duration varies patient to patient according to the tolerance. अब ट्रैक्शन जो मैंने आपको असेसमेंट टेस्ट में फर्स्ट बताया था, नेक डिस्ट्रैक्शन और ट्रैक्शन, वो हम असेसमेंट के थ्रू के लिए भी यूज़ करते हैं और देन हम उसे ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। तो ट्रैक्शन, सर्वाइकल ट्रैक्शन आप मैनुअली भी दे सकते हैं बाय हैंड, या फिर आप कॉलर के थ्रू भी दे सकते हैं। और इसको हम रिपीट करते हैं 3 टाइम्स और 15 to 30 सेकेंड के लिए होल्ड करते हैं। और अगेन इसकी ड्यूरेशन वेरी करती है पेशेंट टू पेशेंट अकॉर्डिंग टू द टॉलरेंस ऑफ पेशेंट। नाउ सेकंड इज सर्वाइकल रेंज ऑफ मोशन। हम नॉर्मली सर्वाइकल की रेंज ऑफ मोशन करवाएंगे। पहले हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाएंगे, देन जब पेशेंट को पेन नहीं होगा तो हम एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हमारे पास आ जाती है फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्जन, लेटरल रोटेशन। देन ये पेशेंट टू पेशेंट अकॉर्डिंग टू द टॉलरेंस ऑफ पेशेंट।
नाउ सेकंड इज सर्वाइकल रेंज ऑफ मोशन। हम नॉर्मली सर्वाइकल की रेंज ऑफ मोशन करवाएंगे। पहले हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाएंगे, देन जब पेशेंट को पेन नहीं होगा तो हम एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हमारे पास आ जाती है फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, लैटरल फ्लेक्जन, लैटरल रोटेशन। देन वी मूव टूवर्ड्स द आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। ये स्ट्रेंथनिंग के लिए होती है, और जो नॉर्मल हम रेंज ऑफ मोशन कर रहे थे, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, पेशेंट को वैसे ही करवाएंगे, लेकिन अगर वो एक्सटेंड कर रहा होगा तो हम उसे रेजिस्ट करेंगे। जैसे ये वाली पिक्चर जो है, इसमें पेशेंट फ्लेक्जन कर रहा है और हम उसे थेरेपिस्ट रेजिस्ट करेंगे, और यहाँ पे ये एक्सटेंशन कर रहा है, और थेरेपिस्ट आगे हेड की तरफ फॉरहेड पे हैंड रख के उसे रेजिस्ट करेगा। उसके बाद सर्वाइकल लैटरल फ्लेक्जन है और रोटेशन है। इसमें लैटरल फ्लेक्जन है, रोटेशन शो नहीं है पिक्चर में, और ये पेशेंट खुद भी कर सकता है। जैसे हम होम एक्सरसाइज प्लान जब पेशेंट को बताते हैं तो वो खुद भी कर सकता है, और थेरेपिस्ट भी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज सर्वाइकल स्पाइन की परफॉर्म करवाएंगे। उसके बाद आता है अपर ट्रेपेजियस मसल स्ट्रेच। थेरेपिस्ट laterally flex the neck to the same side in sitting position। अपर ट्रेपेजियस मसल के स्ट्रेच के लिए पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बिठाना है, और थेरेपिस्ट उसके बैक साइड पे होगा और लेटरली फ्लेक्स करवाएगा नेक को सेम साइड पे जिस साइड पे पेशेंट कंप्लेन कर रहा है। अगर राइट साइड पे कंप्लेन कर रहा है तो हम राइट साइड पे कराएंगे, और अगर लेफ़्ट साइड पे कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पे कराएंगे। These stretches can also be given in the prone position, in which the upper body is supported on the couch while the neck is out of the couch and supported by the therapist's hand. Then therapist slightly extend the neck, and this position create a best angle for the passive stretching of upper trapezius, and then laterally flex the neck on the same side. Hold this stretch for 15 to 20 सेकेंड and repeat it 3 times। पिक्चर में जो है वो सिटिंग में है। मैंने आपको पहले सिटिंग में एक्सप्लेन किया कि हम अपर ट्रेपेजियस का स्ट्रेच कैसे देंगे। इस स्ट्रेच को, सेम स्ट्रेच को हम प्रोन सुपाइन पोजीशन में भी दे सकते हैं, या प्रोन सुपाइन पोजीशन में देंगे, और इसमें पेशेंट की हम नेक को पहले स्लाइटली एक्सटेंड करेंगे, उसके बाद हम उसे लेटरली फ्लेक्स करवाएंगे। ये पोजीशन ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें अपर ट्रेपेजियस मसल जब हमने स्लाइट नेक को स्ट्रेच किया, नेक को एक्सटेंड किया है, तो अपर ट्रेपेजियस मसल की पैसिव स्ट्रेचिंग के लिए ये बेस्ट एंगल है। उसके बाद हम लेटरली फ्लेक्स करेंगे नेक को सेम साइड के, और अगर हम सुपाइन में करवा रहे हैं या सिटिंग में करवा रहे हैं तो पेशेंट को स्ट्रेच को हमें होल्ड करना है 15 टू 20 सेकेंड्स के लिए, और इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है 3 टाइम्स, या ये वेरी भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द टॉलरेंस ऑफ पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ द पेशेंट। नाउ मीडियन नर्व स्ट्रेच, अल्नर नर्व स्ट्रेच एंड रेडियल नर्व स्ट्रेच। मैंने आपको असेसमेंट में बताया था कि हम अपर लिम्ब न्यूरोडायनेमिक टेंशन टेस्ट इसीलिए परफॉर्म कर रहे होते हैं कि हमें पता चले सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में कौन सी नर्व कंप्रेस हो रही है। सेम टेस्ट अगर पेशेंट का पॉजिटिव आया मीडियन नर्व के लिए, तो हम उसी पोजीशन में पेशेंट को स्ट्रेच देंगे, उसी पोजीशन के साथ, सेम मूवमेंट के साथ। अगर अल्नर का आया तो अल्नर में भी हम जैसे असेसमेंट में परफॉर्म कर रहे थे, सेम इसी स्ट्रेच को ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ करेंगे, और 15 टू 20 सेकंड के लिए इसे होल्ड ऑन करेंगे, रिपीट करेंगे 3 टाइम्स। अगर अल्नर का आया है तो अल्नर में भी हमें ऐसे ही करना है। अगर अल्नर की कंप्रेशन आई है, रेडियल की आई है, तो रेडियल में भी सेम मूवमेंट को फॉलो करना है ट्रीटमेंट के लिए। नाउ होम एक्सरसाइज प्लान। होम एक्सरसाइज प्लान में सबसे पहले हमने पेशेंट को हीटिंग बतानी है। जैसे हमने ट्रीटमेंट में डिस्कस किया कि हमारे पास 2 अप्रोचेज़ होती हैं, एक मॉडलिटीज़ के थ्रू, एक एक्सरसाइज। तो हम हीटिंग इसलिए करा रहे थे ताकि पेशेंट के मसल्स में वार्म अप हो। तो हमें घर में भी हीटिंग का एडवाइस करनी है पेशेंट को। उसके अलावा जो एक्सरसाइजेज़ हमने उसे करवाई हैं, सेम एक्सरसाइज घर के लिए भी बोलनी है 2 टाइम्स इन अ डे। और कुछ प्रिकॉशंस पेशेंट को फॉलो करने के लिए कहना है, जैसे ज़्यादा मोटा तकिया यूज़ नहीं करना, लेटकर मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना, साइड लाइंग पोजीशन में अगर लेफ़्ट साइड पे उसे पेन है तो हम कहेंगे ज़्यादा प्रोलॉन्ग लेफ़्ट साइड लाइंग पोजीशन अटेन ना करें वो।
अवॉइड टू वर्क इन सस्टेंड सर्वाइकल फ्लेक्स सर्वाइकल स्पाइन पोजीशन। ऐसे काम नहीं करने जिसमें सर्वाइकल फ्लेक्जन हो रही है और वो भी सस्टेन्ड हो रही है। तो ये सारे प्रिकॉशंस हमने पेशेंट को बताने हैं। अगेन वेरिफिकेशन कोड या आप नोट डाउन कर लें। If you have any query, you can ask in the comment section. I will reply. For certificate, contact on the mentioned number. Thank you. Hope you will like my session. Once again, thank you. Allah Hafiz.